Hello and welcome to this lecture. We have seen that how thyristor is constructed, uh, what are the three different modes in which thyristor works, and previously in the previous lecture, we have discussed that if we want to make the thyristor conducting, then we have to pull it in the forward conduction mode. And how does that happen? When we switch on the gate pulse and supply voltage is provided as anode with respect to cathode, I mean anode positive with respect to cathode with the gate on, then thyristor goes into the forward conduction mode and starts conducting. Okay, so today we are going to discuss about thyristor turn on methods with anode positive with respect to cathode. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको a thyristor can be turned on by any of the following techniques. So these are the techniques by which we can make thyristors anode terminal positive with respect to cathode, provided that gate pulse must be there. If gate is disconnected, then it will go either into the reverse conducting mode or totally into the reverse blocking mode. So there are two kinds of reverse mode we have seen in the previous lecture: reverse blocking, I mean the total disconnection, and in reverse conducting, there was a small amount of leakage current due to the uh, reverse bias voltage across it. But here we are interested to turn on the thyristor and we should make anode with positive with respect to cathode, and these are the techniques. What are the techniques? First is forward voltage triggering, second is gate triggering, third is dv by dt triggering, fourth is temperature triggering, and fifth is light triggering. These methods of turning on a thyristor are discussed in this particular section. So forward voltage triggering. When anode to cathode forward voltage is increased with gate circuit open, the reverse bias junction J2 will break. This is known as avalanche breakdown, and the voltage at which avalanche occurs is known as the forward breakover voltage VBO. At this voltage, transistor changes from off state to on state, characterized by low voltage across thyristor with large forward current. क्या किया गया है? गेट अभी डिस्कनेक्टेड है और रिवर्स बायस जंक्शन के अक्रॉस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया है. जैसे ही वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस है, धीरे धीरे वहां पे एवलांच ब्रेकडाउन होगा और जैसे ही एवलांच ब्रेकडाउन होगा, लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होने लगेगा. ठीक है. As other junctions J1, J3 are already forward biased, breakdown of junction J2 allows free movement of carriers across three junctions. As a result, large forward anode current flows. अब होता यही है ना कि J1 और J3 को हमने फॉरवर्ड बायस किया है, J2 रिवर्स बायस है, और जैसे ही J2 के अक्रॉस हम उस रिवर्स वोल्टेज को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन होता है, तो वो जंक्शन जो है ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो J1 और J3 फ्री हो जाते हैं चार्जेस के मूवमेंट के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ एनोड करंट हमको मिलता है. एज स्टेटेड बिफोर, दिस फॉरवर्ड करंट इज लिमिटेड बाय द लोड इम्पिडेंस. अब इसको लोड इम्पिडेंस लगा के आप क्या कर सकते हैं? लिमिट कर सकते हैं. In practice, the transition from off state to on state obtained by exceeding VBO is never employed as it may destroy the device. VBO के ऊपर हम वोल्टेज को नहीं ले जाएंगे. वोल्टेज जो ब्रेक डाउन हो रहा है वहां पे, यहाँ पे इसको ब्रेक ओवर वोल्टेज बोल रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है इसलिए. तो उससे ज्यादा हम उस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे, अदरवाइज योर डिवाइस विल डिस्ट्रॉय. The magnitudes of forward and reverse breakover voltages are nearly the same and both are temperature dependent. In practice, it is found that VBR is slightly more than VBO. अब एक VBR टर्म है, एक VBO टर्म है. पिछले क्लास में हमने पढ़ा है VBR मतलब वोल्टेज ब्रेकडाउन जो होता है उसको हम बोलेंगे VBR, और एक होता है वोल्टेज ब्रेक ओवर. तो जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो वोल्टेज ब्रेक ओवर, जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो वोल्टेज ब्रेकडाउन. दोनों में वही होगा, जंक्शन ब्रेकडाउन ही होगा, बट टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है. Therefore, forward breakover voltage is taken as the final voltage rating of the device during the design of SCR application. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ये बोलती है कि VBR जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे? VBO से. अब अभी हमने बोला कि अगर हम VBO के ऊपर ले जाएंगे तो डिवाइस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय. तो VBR तक तो हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि VBR तो VBO से ज्यादा है और वीबीओ मेरी वो लिमिट है जिसके ऊपर मैं अपने डिवाइस को कंडक्ट नहीं करा सकता. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम प्रैक्टिकली डिजाइन करेंगे एससीआर को किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो हम ये जो वीबीओ वाला वोल्टेज है उसी को हम क्या मान के चलेंगे? मैक्सिमम रेटिंग मान के चलेंगे, हम वीबीआर की तरफ नहीं देखेंगे. ठीक है.
तो वो वीबीओ वो वोल्टेज है, वो फाइनल वोल्टेज है जिस जिस तक या जिस वैल्यू तक, जिस लिमिट तक हम अपने डिवाइस को एससीआर के एप्लीकेशंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। After the avalanche breakdown, junction J2 loses its reverse blocking capability. Therefore, if the anode voltage is reduced below VBO, SCR will continue conduction of the current. The SCR can now be turned off by reducing the anode current below a certain value called holding current. ठीक है, एक बार भाई आपने ब्रेक डाउन कर दिया, रास्ता आपने ओपन कर दिया, अब आप वोल्टेज को डिक्रीज भी कर लेंगे क्योंकि रास्ता ओपन हो चुका है, पाथ हैज बीन ब्रोकन। तो आप आसानी से मूव कर सकते हैं, करंट आसानी से मूव कर सकता है। जितनी मर्जी आप वोल्टेज कम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें करंट के कंडक्शन में उसको, क्योंकि द लूप हैज बीन कंप्लीटेड, इट इज इन द क्लोज लूप कंडीशन। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एससीआर को अगर अब इसके बाद आपको टर्न ऑफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत वैल्यू को लो ले जाना पड़ेगा। और कितना लो ले जाना पड़ेगा, होल्डिंग करंट से नीचे। पिछली क्लास में मैंने बताया था होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। तो होल्डिंग करंट वो करंट है आपके थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए जितने करंट चाहिए ना, जितना मिनिमम करंट, वही होल्डिंग करंट। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग दूसरा मेथड होता है। टर्निंग ऑन ऑफ थायरिस्टर बाय गेट ट्रिगरिंग इज सिंपल, रिलायबल एंड एफिशिएंट। इट इज देयरफॉर द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ फायरिंग द फॉरवर्ड बायस एससीआर। तो गेट ट्रिगरिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। थायरिस्टर विद फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज say 800 volt higher than the normal working voltage, say 400 volt is chosen. This means that thyristor will remain in forward blocking state with normal working voltage across anode and cathode and with gate open. ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कितना लिया आपने, 800 वोल्ट। नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है, 400 वोल्ट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 800 वोल्ट्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 800 400 वोल्ट्स। हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कभी सुना है मिली वोल्ट से ऊपर के कोई वोल्टेज? हम हमेशा मिली वोल्ट की बात करते हैं। और चलो डीसी में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई चलो 1.2 वोल्ट, या चलो डीसी अगर बैटरी की बात करेंगे तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। इतना के ही आसपास हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कशन करते हैं। मैक्सिमम तो हम मिली वोल्ट और नैनो वोल्ट में चले जाते हैं, माइक्रो वोल्ट में चले जाते हैं। बट हियर द सब्जेक्ट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ आई डिफाइंड यू द डिफरेंस कि भाई इस तरीके का जो रेंज है, वोल्टेज है, वो आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मिलेगा। ठीक है, तो 800 वोल्ट्स की बात कर रहे हैं। गेट ओपन है, वही हमने रिवर्स बायस लगा दिया वहां पे और सर्किट वहां पे ओपन हो गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में वो चला जाता है विथ नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज, क्योंकि आपने ब्रेक ओवर वोल्टेज इतना दिया हुआ है और अब गेट ओपन है उस समय पे। However, when turn on of a thyristor is required, a positive gate voltage between gate and cathode is applied. अब आपने क्या कर दिया, ये वाला जो पहला वाला मेथड था उसमें आप कोई गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे थे, अब आप गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। With gate current thus established, charges are injected into the inner P layer and voltage at which the forward breakover occurs is reduced. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आपने गेट से सप्लाई दी है तो जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब आप रिवर्स बायस इंक्रीज करके जंक्शन को ब्रेक करके यू आर नॉट गोइंग टू मेक द थायरिस्टर कंडक्टिंग। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आप गेट से ट्रिगर दे रहे हैं, गेट से एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसके थ्रू आप थायरिस्टर को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वीवीओ जो है, जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, उससे लेस होगा ये वोल्टेज जो इस बार अप्लाई होगा। The forward voltage at which the device switches to on state depends on the magnitude of the gate current. Higher the gate current, lower is the forward breakover voltage. जितना ज्यादा आप गेट करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ही ब्रेक ओवर वोल्टेज कम होगा और उतना ही आपके डिवाइस के लिए अच्छा होगा। ये देखो, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है और ये गेट करंट है। जितना ज्यादा मैं गेट करंट को इंक्रीज करता जाऊंगा, इस फिगर में आप देख रहे हैं, तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज उतना ही क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस तक के ही अपने को डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, when positive gate current is applied, gate P layer is flooded with electrons from the cathode. This is because cathode end layer is heavily doped as compared to the gate P layer. As the thyristor is forward biased, some of these electrons reach to junction J2. As a result, width of depletion layer around the J2 is reduced. Obviously, क्योंकि आप वैसे भी ब्रेक और वोल्टेज को कम कर रहे हैं, अगर मैं करंट बढ़ाते जाऊंगा तो इस ब्रेक और वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब रिवर्स बायस को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस को हम बढ़ा रहे हैं। दिस कॉजेज द जंक्शन J2 to break down at any applied voltage lower than the breakover voltage VBO. If magnitude of the gate current is increased, more electrons will reach to the junction J2. As a consequence, thyristor will get turned on at much lower forward applied voltage. ठीक है, अब ये नीचे का एनालिसिस में वही बताया गया जो मैंने आपको फिगर में बताया है। तो वी आर जस्ट मूविंग टू दी नेक्स्ट स्टेट। एक बार इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Once the SCR is conducting a forward current, reverse bias junction J2 no longer exists.
क्योंकि फॉरवर्ड करंट आ गया है इसलिए। J2 जो है वो, देखिए J2 जो है उसको आप दो तरीके से हैंडल कर रहे हैं। पहले वाले केस में हमने क्या किया, J2 को इतना बढ़ा दिया, डिप्लीशन लेयर को इतना बढ़ा दिया कि वहां पे ब्रेकडाउन ही हो गया। और इस बार क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड करंट को इतना बढ़ा रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर ही कम कर दे रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। वहां पे हम डिप्लीशन लेयर को बढ़ा के ब्रेक डाउन कर रहे थे, यहाँ पे हम डिप्लीशन लेयर को रिड्यूस कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द करंट। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। Then therefore, if the gate current is removed, the conduction of current from inner anode to cathode remains unaffected. However, if gate current is reduced to zero before rising anode current attains a value called the latching current, the thyristor will turn off again. Now here's the latching current. अब लैचिंग करंट वो क्या वैल्यू, वो मिनिमम एनोड करंट है जिसको थायरिस्टर को अटेन करना है टू बी इन द ऑन स्टेट। लैचिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट है जिसमें थायरिस्टर एक बार अगर उसने उस वैल्यू को अटेन कर लिया तो वो ऑन स्टेट में ही रहने वाला है। ठीक है। और होल्डिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट है जिससे नीचे आप थायरिस्टर को नहीं ले जा सकते। दोनों में डिफरेंस है। होल्डिंग करंट इज द मिनिमम करंट below which thyristor will not work, thyristor will not work, or latching current is the minimum current required to maintain the thyristor in the on condition। माइन्यूट से डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वही मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट जो उसने बताया मैंने। once the thyristor is conducting, gate loses the control, the thyristor can be turned off only if the forward current falls below the low level current called the holding current। as I said, holding current से नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके तो थर्ड मेथड है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। दिस मेथड इज डिस्कस फर्दर इन, देख लेंगे इस मेथड को, कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, कुछ नहीं है। आप टाइम के रिस्पेक्ट में आपने वोल्टेज को क्या करते गए, डिफरेंशिएट करते गया, तो उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट में हम लोग ट्रिगर करते रहेंगे। ये इसका बेसिक मीनिंग है और उसकी कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, टेम्परेचर ट्रिगर करके भी कर सकते हैं ड्यूरिंग। चौथा जो मेथड है वो क्या है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। During forward blocking, most of the applied voltage appears across reverse bias junction J2. This voltage across junction J2 associated with leakage current may rise the temperature of these junction. With increase in temperature, leakage current through junction J2 further increases. The cumulative process may turn on the SCR at some high temperature. अब आपको याद होगा जब हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ डायोड पढ़ी थी ना थर्ड सेमेस्टर में, जब हम ईडीसी पढ़ते हैं तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी पढ़ते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, उस समय आप लोग फॉर्मूले भी निकालते हैं और उसका कैलकुलेशन करके ना एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगर वो आप लोग भूल गए होंगे तो लेट मी रिमाइंड यू, टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, फॉरवर्ड करंट सॉरी रिवर्स करंट भी उसके अक्रॉस क्या हो जाता है, लीकेज करंट भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते थे हम लोग उस समय उसको डायोड के केस में, यहाँ पे हम लोग उसको लीकेज करंट बोल रहे हैं, वन इन द सेम थिंग। हायर टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा हम जब टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इस तरीके की आपको एक्टिविटी देखने को मिल सकती है कि वहां पे आपको एनोड करंट देखने को मिलेगा J2 के अक्रॉस। ठीक है, लास्ट है लाइट ट्रिगरिंग। फॉर लाइट ट्रिगरिंग SCRs, रिसेस और नाइक इज मेड इन द इनर P layer as shown in figure 4.5a। देख लेंगे, when this recess is irradiated, free charge carriers are generated just like when gate signal is applied between gate to cathode. The pulse of light of appropriate wavelength is guided by optical fibers for irradiation. If the intensity of this light thrown on the recess exceeds a certain value, forward bias SCR is turned on. Such a thyristor is known as light activated SCR, LASCR। जैसे सोलार सेल में होता है ना, सोलार सेल में जैसे लाइट आपकी इंसिडेंट होती है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट ट्रिगर करके इरेडिएशन के थ्रू हम चार्ज कैरियर्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को। और ये वैसा ही है जैसे आप गेट सिग्नल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक रिसेस बना के एक नाइक क्रिएट करके हम ये काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे एक आपने रिसेस बना दिया, यहाँ से लाइट इंसर्ट होगा और इस लाइट के इंसर्शन के कारण जो है चार्जेस का मूवमेंट होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का इसके क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे मेथड को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बताया गया है, आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि अगर मुझे क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना है, हाँ ठीक है, ये 4.5 भी आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू बता रहा है। इन दिस फिगर अप्रोक्सीमेट डोपिंग डेंसिटीज इज आल्सो गिवन, कितना डोपिंग करना पड़ेगा आपको एन लेयर और पी लेयर में, उसकी वैल्यूज को भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट जंक्शन विद लाइटली डोप्ड लेयर्स रिक्वायर्स लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज। बिल्कुल, लाइटली डोप्ड होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा लगेगा।
है ना, ज्यादा टाइम लगेगा उसको मूव करने के लिए, ज्यादा पुश लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। जंक्शन विथ हाईली डोप्ड लेयर्स ऑन बोथ साइड्स रिक्वायर्स लो ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये कोई समझाने की बात नहीं है, आपको ये चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो ये पूरा जो मेथड है वो लाइट ट्रिगरिंग के ऊपर बेस्ड है, इतना डिटेल में इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लाइट ट्रिगरिंग थायरिस्टर्स हैव नाउ बीन यूज्ड इन हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। HVDC सिस्टम में ये लाइट ट्रिगरिंग यूज होती है। इन दीज सेवरल SCRs आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ SCRs। तो वहां पे भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से ये वेरिएशन हमको देखने को मिलता है जब हम SCR को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं। ठीक है, तो this is all for today's lecture. We have seen that how we can turn on the thyristor, turn on methods we discussed in detail. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन टर्न ऑफ द थायरिस्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।